Hello class. Now today is our 8th lecture. 1 week is over and we are almost done with exercise 3.2 of matrices. Now today I will finish the few questions which are remaining of that exercise. Okay. So let us move forward and start and finish off the remaining questions of exercise 3.2. And let me solve the two MCQs which I solved yesterday. Maybe if those would not have been clear to you. So I will first start with that only. Okay. Now, question number 21 for exercise 3.2. Okay. For question number 21 and 22, they have given few restrictions. They have given X is 2 cross N, Y is 3 cross P, then Y is 3 cross K, Z is 2 cross P, W is N cross 3 and P is P cross K matrix. Okay. And these are the conditions given. These are the conditions given. X is 2 cross N, Y is 3 cross K, Z is 2 cross P, W is N cross 3 and P is P cross K. Now they have asked to solve question number 21 and 22, which are the two MCQs. Find okay, first is Py plus Wy is defined. Okay, that is given. And we have to find the restrictions on N, K and P. So what I did yesterday is that since Py plus Wy is defined, so I wrote P plus W into Y is defined. You can say distributive. Okay. Now since P plus Y into W is defined, so definitely both the individual matrices have to be defined. So what I will write? P plus W is defined. Now since P plus W is defined, P and W are of same order. Because in addition, P and W must have the same order. I will do the first method. If possible, I might do the second method. If I think. Now, what is the order of P? P is P cross K and W is N cross 3. So without any much fuss, P and W are the same order, means number of rows. So P has to be equal to N and number of columns have to be equal, so K is equal to 3. So this is the answer. So finally, what is the answer? The answer says therefore N is P and K is 3. This is I have done yesterday the same method. I hope I'm clear. Not at all tough, right? Easy method? Sorry. Now, this is question number 22 or MCQ number, question number 21 or MCQ number 21. That is the answer. Option number A. A is 3 and N is P or P is N, whatever. This is the final answer. Now, the same data here means X, Y, Z, P, W are they are same defined as for question number 21, and now they have said that keeping X 2 cross N, Y 3 cross K, Z is 2 cross P, W is N cross K, P is P cross K, you need to solve question number 22. That is MCQ number 22. Okay, so what does MCQ number 22 ask? It says N is P. If N is P, then find order of 7x minus 5z. Okay. So what I will do is that here N is equal to P. We are at N is equal to P. That is given. तो फाइनल आंसर में अगर n में है तो n p की जगह पे लिखेंगे या n की जगह p लिखेंगे, n is equal to p. Now x का ऑर्डर क्या है? As x is 2 cross n. तो that logic 7 into x. What is 7 into x? 7 multiplied with every element of matrix x. तो वो सेम ही ऑर्डर आएगा. 7x is also 2 cross n. याद रखने का. रिजल्ट नंबर 1. फिर z is 2 cross p, तो उस लॉजिक से हमको चाहिए 5z. सो 5z क्या होगा? 5z
you can say 2 cross p. Right. अब मुझे चाहिए order of 7x minus 5z. So 7x minus 5z defined here. 7x minus 5z का order निकालना है, मतलब 7x minus 5z is defined. तो क्या होना चाहिए उस लॉजिक से 7x और 5z का सेम ऑर्डर होना चाहिए. तो 7x and 5z have same order. उस लॉजिक से by 1 and 2 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है और 5z का ऑर्डर 2 क्रॉस p है. तो क्या होना चाहिए 2 is equal to और n क्रॉस p. So 7x है, sorry अगेन मेरी गलती हो गई, कल भी मैंने ऐसे मिस्टेक की थी. Then find the order of 7x minus 5z. सॉरी, हमको यहाँ पे कंडीशंस निकालनी है. मैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ कंफ्यूजन कर रहा हूँ. So 7x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और 5z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p. तो and here n is equal to p, that is given. तो मैं कैसे लिख देता हूँ, मैं सब सारे आंसर्स p की जगह पे मैं n ही लिख दूंगा. तो 7x is 2 क्रॉस n और 5z क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा 2 क्रॉस p की जगह पे लिख दूंगा 2 क्रॉस n because n is equal to p. 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, 5z का ऑर्डर 2 क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम है. तो 7x minus 5z का ऑर्डर क्या आना चाहिए, a अगर 2 क्रॉस 2 है, b अगर 2 क्रॉस 2 है, तो a minus b क्या होगा 2 क्रॉस 2. तो 7x 2 क्रॉस n और 5z भी 2 क्रॉस n. तो therefore 7x minus 5z is 2 क्रॉस n मैट्रिक्स. तो ऑर्डर क्या आना चाहिए उसका 2 क्रॉस n, या तो फिर n की जगह पे लिख दें 10 क्रॉस 2 क्रॉस p. कुछ भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई इजी. मुझे लगा कनेक्शन करना है, सॉरी थोड़ा मैंने रेफर नहीं किया, मतलब मैंने अपने फ्लो में मैंने सोचा कि कुछ और 2-3 चीजें दिखा दूं, बट डजंट मेक सेंस. सो इफ n is equal to p, then find the order of 7x minus 5z. n is equal to p, x is 2 cross n, तो 7x 2 cross n, z is 2 cross p, तो 5z भी 2 cross p. अब n is equal to p है, तो 7x को 2 cross n ही रखा और 5z को 2 क्रॉस n कर दिया, p की जगह पे n कर दिया. ठीक है, तो उस लॉजिक से दोनों का ऑर्डर सेम हो गए. तो 7x minus 5z कितना हो गया 2 क्रॉस. और वही पूछे फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x minus 5z. तो 7x minus 5z का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p. ऑप्शन में है 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस n से. ठीक है, इजी नॉट टफ, बराबर. तो कल ये मैंने सॉल्व किया था. अगर वो आपको समझ में नहीं आया हो, दैट्स व्हाई मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग में ही ये दोनों समझा दिए ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो या कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, राइट, ओके. नाउ अब अगर वो कल मैंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हो गए, सॉरी मैंने कल क्वेश्चन नंबर 20 किया था और क्वेश्चन नंबर 19 मैंने छोड़ा था. तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करता हूँ और फिर अगर आपको कल मैंने जो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है उसमें अगर कोई मिस्टेक हो, अगर टाइम होगा तो मैं वो भी करके दे दूंगा वापस. लेट मी सी. और वो एक fx वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें प्रॉब्लम है, या वो कल हमने वो tan अल्फा वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो कर लेंगे. डिपेंड करता है हाउ द टाइम गोस एंड व्हाट टॉपिक्स आई कवर. ओके, नाउ लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, अब ये क्या कह रहा है, अ trust fund has rupees 30,000 that must be invested into different types of bonds. मतलब total amount invested is rupees 30,000. ठीक है, in two bonds. The first bond pays 5% interest and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 into two types of bonds. अगर हमको पहले में पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट 1800 मिले और सेकंड में है कि हमको टोटल इंटरेस्ट 2000 मिले. ओके, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज रुपीज 30,000. तो मैं क्या करूंगा, लेट, और एक रूल ये है कि फर्स्ट फंड गिव्स 5% इंटरेस्ट and second fund gives 7%
second fund gives 7% interest annually, मतलब पर और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRT अपॉन 100, या फिर T 1 होगा, ये आपको पता ही है। और उन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट पार्ट में टोटल इंटरेस्ट हमको मिलता है ₹1800, और पूछा है कि फर्स्ट फंड और सेकंड फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो लेट अस एज्यूम, लेट अमाउंट invested in first fund is equal to ₹X। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 30,000। तो अगर पहले फंड में X किया तो सेकंड फंड में कितना आना चाहिए? 30,000 माइनस X। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड फंड, कितना हो जाएगा? ₹30,000 माइनस X। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x2 ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड तो उस लॉजिक से A क्या हो जाएगा? मतलब A एक मैट्रिक्स में रखता हूं जिसमें मैं रो वाइज अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट एंड सेकंड फंड ऐसे रखूंगा, तो A क्या हो जाएगा? ओके, ऑर्डर क्या है? 1x2, मतलब 1 रो और 2 कॉलम्स, मतलब पहले फंड में कितना इन्वेस्ट किया X और दूसरे फंड में कितना इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस X। ये हो गया हमारा 1x2, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स के रखा है। फिर मैं रखता हूं लेट B इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x1, 2 columns, 2 rows and 1 column matrix, मतलब 2x1 of, you can say, interest given on funds, तो उस लॉजिक से B क्या हो जाएगा? B पहला फंड कितना इंटरेस्ट देता है? 5%, तो 5% मतलब कितना हो गया? 5/100, तो ये हो जाएगा 5/100, ऐसे ही रखेगा। और दूसरा कितना देता था? 7%, तो 7/100। ओके, फंड, ओके, बॉन्ड यूज किया है मैंने, फंड यूज कर दिया है, सॉरी वो वर्ड में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो A हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड, रो मैट्रिक्स, और B हो गया क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले और दूसरे फंड में, तो वो A और B हो गया। और ये कितना है? 2x1। ठीक है, तो अगर मैं A is 1x2, B is 2x1, तो उस लॉजिक से AB क्या होगा? AB is 1x1, इसके कॉलम्स इज इक्वल टू इसके रोज, तो AB is डिफाइंड और इनटू और 1x1 हो जाएगा। एंड मैं C एक मैट्रिक्स रखता हूं, C is equal to मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1 ऑफ टोटल इंटरेस्ट, तो हमारे केस में पहले केस में कितना टोटल इंटरेस्ट है? 1800 रुपीज, तो उस लॉजिक से C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, सिंस इट इज 1x1 मैट्रिक्स, C क्या होगा? 1800। लेट मी सी, 1800 है 18,000? 1800, ओके, 1x1। और अगर तुम लोगों को समझ में आया होगा तो हियर AB क्या होना चाहिए? has to be equal to C, A into B has to be equal to C। और वो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। मैंने A क्या रखा था? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फंड्स, पहले फंड में कितना? X, और टोटल अमाउंट था इन्वेस्टेड 30,000, तो दूसरे में कितना करेंगे? 30,000 माइनस X, ये A रखा। B क्या रखा मैंने? वो मैट्रिक्स जिसमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कॉलम वाइज है। 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100, तो A into B पॉसिबल है, 1x1 होगा। और C में मैट्रिक्स वो रखता हूं जिसमें टोटल इंटरेस्ट ऑफ टोटल इंटरेस्ट गॉट, और हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या था पहले केस में? 1800, सो C is equal to 1800 1x1 बिकॉज़ टोटल इंटरेस्ट इज 1800। सपोज किसी को ना ख्याल आया, मैं फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो AB is equal to C।
बस अब इजी, अब खाली कैलकुलेशन करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। सो AB इज इक्वल टू C, क्यों? AB भी 1+1 है और C भी 1+1 है। सो AB इज इक्वल टू C, तो A कितना था? X, 30,000 माइनस X, लेट मी राइट द होल पोर्शन, और पूरे बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और व्हाट आई विल डू इज दैट मैं पूरा सेकंड पार्ट भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। अगर फर्स्ट टर्म क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है, तो मैं पूरा पैटर्न रिपीट करूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मैंने A लिखा, फिर B क्या था? परसेंटेज, फर्स्ट का 5%, सेकंड का 7%, ओके, इज इक्वल टू C, कितना टोटल इंटरेस्ट मिला? 1800, ओके। और टोटल इंटरेस्ट कैसे मिलता है? ऑब्वियसली A into B ही करना पड़ेगा, मतलब 5% of X plus 7% of 30,000 minus X has to be equal to 1800, that is the idea। बस अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या है? X into 5/100 plus 30,000 minus X into 7/100 is equal to 1800, okay। And now by equality of matrices, 5x by 100 plus 7 by 100 into 30,000 minus x is equal to 1800. Easy? This matrix is equal to this matrix, so respective elements are equal. So मैंने इक्वेट कर दिया। और अगर तुम लोगों को समझ में आया हो तो टोटल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? टोटल इंटरेस्ट अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो टोटल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 1800 कैसे मिलेगा? 5% of x plus 7% of 30,000 minus x, या 5% of amount in the first fund plus 7% of amount in the second fund is equal to total interest। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। if you refer some pages or if you refer to the solution of other teachers तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, but in schools or in board exam you will be given wrong, क्योंकि उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में amount using matrix algebra। तो मैं लिख देता हूं 5x by 100 plus 7/100 into 30,000 minus x is equal to 1800। फिर तो इजी है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो क्या मिलता है? 5x plus 7 into 30,000 minus x is equal to 1800 into 100, so 1800 into 100, okay। now अब x पार्ट कर दूंगा और x निकालूंगा, x मिल जाएगा अमाउंट इन द फर्स्ट फंड, तो सेकंड फंड में कितना होगा? 30,000 minus x, easy। so 5x plus 7 3 are 21, 1 2 3 4, so 2,10,000 minus 7x is equal to 181 2 3 4, so 1,80,000। so now what are you left with? 7x, so 2x is equal to 2,10,000 minus 1,80,000 is 30,000, so x is equal to 15,000, x is equal to 15,000। so amount invested in first fund, amount invested in first fund या bond, next टाइप में bond लिखूंगा, गलती हो गई, is rupees x which is rupees 15,000। so amount invested in second fund कितना होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड फंड कितना होगा? 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000 कितना आएगा? 15,000। so amount invested in first fund will be 15,000, amount invested in second fund will be 15,000। सिंपल, थोड़ा लेंथी था, वो लिखने का तरीका अलग था, बाकी तो मैं सीधे ऐसे कर सकता हूं विदाउट यूजिंग मैट्रिक्स, पर मैट्रिक्स का यूज करना है इसके लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा और लगेगा लिखने में, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रेगुलरली मैसेज कर रहा हूं कि प्लीज डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स देखना शुरू करो और घर पे ये सॉल्व करना शुरू करो। ये है इजी, पर लिखने में थोड़ा टाइम जाता है और कैलकुलेटिव है। अगर लिखने you don't get the method how you are writing, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा लिखा, सब्जेक्टिव पोर्शन में 0 मिलता है। और दूसरा मैथ्स के एमसीक्यूज
डायरेक्टली सब्जेक्टिव टाइप नहीं होते, वो आपको ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो कैलकुलेशन लेंदी और कैलकुलेशन वाले पूछते हैं, मतलब टफ और कैलकुलेशन वाले और लेंदी। तो मतलब लाइक हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट। तो एक तरीके से आपको अभी ये टाइम मिला है तो बेटर है आप उसका यूज करो और जितना हो सके जो भी चैप्टर्स मैं सिखा रहा हूं या जितना प्रैक्टिस 2 बार 3 बार साथ में करो तो अच्छा हो जाएगा। वैसे भी आपको स्कूल या ट्यूशन से जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज माय सजेशन, आई नो यू ऑल विल लिसन टू इट एंड फॉलो। ओके, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा सेकंड डिटेल्स होगा, मैं क्या करूंगा सेकंड पूरा डिटेल में ऐसा होगा तो पहले स्लोली समझाऊंगा। अगर पहले में किसी को डाउट रह गया दूसरे में रहना चाहिए, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। अगेन उसी में क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड, अमाउंट इन्वेस्टेड वही है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मुझे याद हो गया। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 बॉन्ड्स कन्वर्ट, मैंने फंड लिखा था ₹30,000 ओके। अब उन्होंने पूछा है फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट ऑन, फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज 5%, so can I write 5/100 इस बार ऐसा किया, और इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड वो दिया है 7%, तो 7% को मैं लिख देता हूं 7/100, ठीक है, ये गिवन है। और उन्होंने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ फंड्स सॉरी बॉन्ड्स टू गेट टोटल इंटरेस्ट। ओके, अब क्या है टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू ₹2000। और हमको पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड, हमको पूछा है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले बॉन्ड में और दूसरे बॉन्ड में। सेम मैं रखूंगा, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। फिर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था 30,000, तो सेकंड बॉन्ड में कितना होगा 30 - X, सो देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितना आएगा आएगा ₹30,000 - X। ओके, सो पहले बॉन्ड में X, दूसरे में कितना 30,000 - X, ठीक है, वो आएगा ₹30,000 - X। ओके, अब आपको पता है टोटल इंटरेस्ट 2000 है, तो 2000 कैसे मिलेगा 5% ऑफ X प्लस, मैं नोट करके लिखता हूं हियर, ये खाली बताने के लिए इसमें थोड़ा कि हियर दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख रहा हूं नोट करके कि हियर 5/100 ऑफ X, 5% ऑफ X मतलब 5% ब्याज X पे प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन X प्लस 7% इंटरेस्ट ऑन 30,000 - X, कितना होगा टोटल 2000। सो 5/100 X प्लस 7/100 ऑफ 30,000 - X कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए, इज इक्वल टू 2000। दिस इक्वेशन मस्ट कम, ये इक्वेशन आना चाहिए, पर डायरेक्ट थोड़ी इसने सर कि वी नो करके, तो उसके लिए थोड़ा मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है। उन्होंने पूरे क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैं क्या करूंगा, मैं अमाउंट इन्वेस्टेड एक रो मैट्रिक्स रखूंगा और परसेंटेज कॉलम मैट्रिक्स रखूंगा और एक वो पहला मैट्रिक्स ए रखूंगा, दूसरा बी रखूंगा, और लेट मी राइट यूजिंग द फुल बोर्ड, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 2 ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। तो उस लॉजिक से ए क्या हो जाएगा, पहले फंड में कितना इन्वेस्ट किया X, पहले बॉन्ड में, अगेन मिस्टेक, पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया X, दूसरे में कितना किया 30,000 - X, और इसका ऑर्डर कितना आएगा 1 × 2, ठीक है। अब B, लेट B इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 1
column matrix 2 cross 1 of rate of interest of interest on bonds. तो पहला बॉन्ड कितना देता है, तो B कितना हो जाएगा, पहला बॉन्ड कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देता है 5%, पर मैंने वो कन्वर्ट कर दिया था 5/100. दूसरा बॉन्ड कितना करता था 7%, तो 7/100 हो जाएगा. ओके, ये 2 क्रॉस 1 हो गया. ठीक है, अब थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं. A का ऑर्डर क्या है, A इज 1 क्रॉस 2, इसे कॉलम 2 है. B क्या है 2 क्रॉस 1. ओके, अब से सॉरी थोड़ी बुद्धि लगा, मुझे 5/100 into x plus 7/100 into 30,000 minus x. इसके लिए मुझे a into b करना पड़ेगा. इसके लिए मैं लिख रहा हूं therefore AB is define number of columns of A is equal to number of rows of B. so 2 cross 2 हुआ, तो AB क्या होगा, AB is 1 cross 1. ठीक है, AB पॉसिबल है. और a into b क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम नहीं कर रहे. और ये जो 2000 है वो क्या है, टोटल इंटरेस्ट. तो मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स को रखूंगा C जो है टोटल इंटरेस्ट. I hope I am clear. Yes. तो let okay AB is 1 cross 1. अब मैं पहले C पे चला जाता हूं. जो टोटल इंटरेस्ट था 2000, so let C is equal to matrix of order 1 cross 1 of total interest. Got total interest, simple. Total interest 2000, ऐसा हम आगे कंफ्यूजन ना हो. तो उस लॉजिक से C क्या हो जाएगा 2000. एंड हियर वो मैंने एक नोट लिखी थी 5 into 5/100 of x plus 7/100 of 30,000 minus x is equal to 2000. तो उसके लिए therefore here क्या लिखेंगे हम लोग, AB is equal to C because AB is 1 cross 1, C is also 1 cross 1. ठीक है, क्लियर. अब कोई मिस्टेक या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. क्यों, क्योंकि आई प्रेफर कि किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. अभी अब सामने होते हैं तो किसी का फेस रीड करके या कोई सामने से डाउट पूछता तो मैं वापस यही चीज 1-2 बार लिख सकता हूं, पर यहां पे तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि आप लोग सामने रेगुलर देख रहे हो. दैट्स व्हाई. तो अब सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. A कितना था, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, अब इजी है x और जो था 30,000 माइनस x. B कितना था 5/100 5% और दूसरा था 7/100 which is equal to ये आ गया हमारा 2000. सेम है पहले जैसा ही, बस यहाँ पे 1800 हो गया. तो अगर आप दोनों दे रेफर कर रहे हो, पहले आप ये देख लो अच्छे तरीके से, उसमें से वो वापस कर लेना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब ये कितना है 1 cross 2 और ये 2 cross 1 है, तो 1 cross 1 ही आना चाहिए. तो आपको पता है x into फर्स्ट कॉलम x into 5/100 plus 30,000 minus x into 7/100 is equal to 2000. Okay, अब इक्वेट करो, अब सॉल्व करो x और वो क्लियर. ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं इक्वेट कर दूंगा क्योंकि दोनों 1 cross 1 मैट्रिक्स है. सिर्फ बोथ आर 1 cross 1 मैट्रिक्स, दोनों को इक्वेट कर दूंगा. सिंपल. और x का वैल्यू निकालो. हो गया. कहां उतना टफ है, नहीं है. So 5x 500 plus 7/100 of 30,000 minus x is equal to कितना है 2000. It's better to write by equality of matrices. By equality of matrices. See, ऐसी चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती है रेगुलर क्लास में, पर अब कौन स्टूडेंट ध्यान देगा मेरे बोलने पे. See, you must pay proper attention. 5x 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 times 30,000 minus x is equal to कितना आएगा 2000 into 100. ओके, अब खाली नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और फिर आंसर आ जाएगा. टफ नहीं है. कितना आएगा आंसर 5x plus 7 3s are 21 1 2 3 4. So 2,10,000 minus 7x is equal to 2 2 3 4 5 2 lakhs.
ओके सो कितना आएगा 7x minus 5 2x is equal to 2 lakh 10,000 minus कितना आएगा 2 sorry 10,000 ओके अब x कितना आएगा 5,000 तो x is amount invested in the first bond वो 5,000 है तो सेकंड बॉन्ड में कितना आएगा 25,000 आंसर होना चाहिए 5,000 और 25,000 ये आंसर आएगा सी ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये इक्वेशन मैंने लिख दिया सॉल्व करने पर x मिलेगा नहीं 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 ऐसे करोगे कुछ नहीं आएगा बंटा बाहर हो जाएगा तो देख सुनने में अच्छा लगता है हो गया जल्दी हो गया अरे आपने थोड़ी सॉल्व किया तो यार टू बी वेरी मैं कैसे कर रहा हूं आपको भी करना पड़ेगा किसी को बोरिंग लगेगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज रुपीस x मतलब रुपीस 5,000 ये आ गया पहला आंसर सिंपल तो है और दूसरा अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड अभी देखो इस बार मेरी गलती भी नहीं हो रही है पहले मैंने कल वो फंड कर रहा था आज मैंने फंड ही किया फिर मैंने ध्यान दिया कि मुझे बॉन्ड ही बोलना है समझ दैट वर्ड फर्क नहीं पड़ता है कुछ बट स्टिल 30,000 माइनस x कितना आएगा 30,000 माइनस 5,000 30,000 माइनस 5,000 कितना आएगा 25 वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना ये इतना लिखने की क्या जरूरत है सीधा लिख दूं x is 5,000 so amount in first bond 5,000 amount in second bond 25,000 और किसको याद रहेगा किसी को पता नहीं चल रहा लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव पोर्शन में 2 या 4 मार्क्स के लिए आया ठीक है इजी अब मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए इजी क्वेश्चन था थोड़ा लेंथी था लिखने में बट इफ यू रिफर दिस डेफिनेटली नाउ अब डाउट नहीं रहना चाहिए ओके अभी कोई इलस्ट्रेशन ऐसा है तो मैं किसी को डाउट है तो मैं इलस्ट्रेशन एक ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए ओके ये एग्जांपल 19 है एग्जांपल 19 की सेम टाइप है पर देखो उन्होंने दिया हुआ आंसर आ गया अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड 5,000 और अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड 25,000 ओके अब मैं एग्जांपल 19 ले रहा हूं इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन लिखता हूं इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड a public relations firm to promote its candidate in 3 ways अच्छा प्रमोट कर रहा है during election telephone house calls and letters the cost per contact is given by matrix से ठीक है और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिया है और फिर पूछा है find the total amount spent by the group अभी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा ओके इजी है और ऐसे दे दिया है सी ये कितना इजी हो जाता है अगर ऐसे दिया होता तो एग्जांपल 19 की तरह क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में दिया होता तो बहुत इजी पड़ता पर नहीं दिया है हमने खुद फॉर्म किया ठीक है ओके सब्जेक्ट इलस्ट्रेशन तो समझ में इलस्ट्रेशन फॉलो करने पर नहीं कैसे लिखना है वहां से आइडिया ठीक है ना इन अ लेजिस्लेटिव ओके हियर A is okay matrix of order कितना 1 2 3 3 cross 1 of cost per contact in पैसे given है तो A कितना है A is given as ये दिया है कॉस्ट पर कांटेक्ट इन पैसे कितना है 40 पैसे पर कांटेक्ट 100 फिर 50 और ये उन्होंने लिखा है टेलीफोन के लिए फिर हाउस और यहाँ पे लेटर्स वगैरह उन्होंने फॉलो किया ठीक है गिवन फिर बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर उन्होंने दिया 1 2 rows 3 columns 2 cross 3 of number of contacts in two cities x and y ये दिया हुआ है of number of contacts in two cities x and y of each type ओके तो वो मैट्रिक्स कितना दिया है वो दिया है that is given as 4
ए का क्या ऑर्डर 1 2 3 3 क्रॉस 1। ओके, तो बी दिया है, बी इज गिवन एज, थोड़ा ये आज का थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूं क्योंकि मुझे कल लगा कि आपको कल वो तो सब्जेक्ट बेसिस नहीं समझ में आया, दैट्स व्हाई। सो बी आई एम टेकिंग एज कितना दिया है 1000, फिर है 3000, फिर है 500, फिर है 1000 और फिर है 5000 10,000। ओके, 5000 10,000। नाउ सी दिस इज फॉर एक्स सिटी और यहाँ पे है वाई सिटी और यहाँ पे है बाय टेलीफोन, फिर है हाउस कॉल और यहाँ पे है लेटर। इसका मतलब क्या है, एक्स सिटी में 1000 लोगों को कांटेक्ट किया टेलीफोन से, 5000 लोगों को हाउस कॉल किया एक्स सिटी में, 5000 लोगों को लेटर लिखा एक्स सिटी में, फिर 3000 लोगों को टेलीफोन किया, 1000 लोगों को हाउस कॉल किया और 10,000 लोगों को लेटर लिखा सिटी वाई में। ये है इस पूरी डेटा का मतलब। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड, मतलब कितना खर्चा किया है ये लोगों को कांटेक्ट करने में इन द टू सिटीज एक्स एंड वाई, ऐसा पूछा है उन्होंने। ये उन्होंने पूछा है कितना खर्चा किया इन सिटी। अब हमारे पास ए क्या है, ए था और अब कर लिए लिख नहीं रहा है, ए था 40, फिर था 100 और यहाँ पे था 50। Now just think ये है 1 2 2 क्रॉस 3 और ये है 1 2 3 3 क्रॉस 1। थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, a into b पॉसिबल होगा कि नहीं पहले देख लेते हैं। a is 3 क्रॉस 1, इसे कॉलम b is 2 क्रॉस 3, कहां से होगा 1 और 2 नहीं पॉसिबल है, सो एक डिफरेंट पॉइंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं मुझे टोटल अमाउंट स्पेंड कैसे मिलेगा, 1000 into 40 plus 500 into 100 plus 5000 into 50, वो मुझे मिल जाएगा x का। फिर y का कैसे मिलेगा, 3000 into 40 plus 1000 लोगों को 100 पैसे, 10,000 into 50, वैसे करना पड़ेगा पर उसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो a into b करने का या b into a करने का, तो उसके लिए a is 3 cross and b is 2 cross 3, तो 8 is not defined, इसलिए a into b नहीं किया है। अब थोड़ा उल्टा करते हैं, b into a होगा कि नहीं। अब b into a, b का ऑर्डर क्या है, b is 2 cross 3, a is 3 cross 1, तो इसके b के कॉलम्स कितने, 3, a के रोज कितने हैं, 3, so ba is defined, so ba is defined कितना, 2 cross 1 है। ओके, और b into a मतलब क्या है, b into a मैं निकालूंगा, तुमको आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, सो अब मैं ba निकालूंगा, सो ba is ba कितना है, 1000 3000, फिर है 500, फिर है 1000, फिर यहाँ पे है 5000 और फिर है 10,000 इनटू एक कितना है 40 और 100 और 50। ओके, अब खाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b into a। अब उन्होंने पूछा था फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना होगा, x पे कितना खर्चा किया, x पे x सिटी में कितना खर्चा किया, x सिटी में खर्चा कैसे मिलेगा, 1000 into 40 plus 500 into 100 plus 5000 into 50, और x सिटी में कितना टोटल खर्चा हुआ, 3000 into 40 पैसे पर कॉल, 1000 into 100 पैसे पर कॉल और 10,000 into 50 पैसे पर कॉल। आई होप आई एम क्लियर, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पर a into b नहीं होगा, b into a होगा। इसके लिए एग्जांपल 19 में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो b into a, ओके, कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1000 इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डायरेक्टली कैलकुलेट करूं कि फिर यू वांट मी टू शो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1000 into 40, ओके, 1000 into 40 is 40,000 plus 500 into 100, so 5 और फिर 4 zeros 4 plus 5,000 into 50, 5 आ जाए 25 and then 3 plus 1 2 3 4, ओके, ये हो गया पहला। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 12 and then 1 2 3 4 1 2 3 4 plus 1000 into 100, so 1 2 3 4, sorry 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 प्लस कितना है 10,000 है 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 this is 2 cross 1 this is BA 2 cross 1 आ गया जो मैंने लिखा था BA is 2 cross 1 अब उतना टफ नहीं अभी खाली इनको ऐड करना पड़ेगा ओके सो BA कितना आएगा 40,000 plus 50,000 कितना होता है 90,000 plus 2,50,000 3,60,000 आ रहा है सॉरी 2,50,000 plus 40,000 90,000 plus sorry 3,40,000 यस राइट है और ये 1,20,000 है plus 1 lakh 2,20,000 7,20,000 राइट ओके ये आ गया ओके सो दिस इज BA तो ये क्या आएगा ये जो है अमाउंट स्पेंड ये पहले वाला जो है ये 3,40,000 वो क्या है टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर सिटी एक्स कॉन्टेक्स्ट के लिए और 7,20,000 क्या है टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर कॉन्टेक्स्ट इन सिटी वाई और अगेन दिस इज इन पैसे और उन्होंने पूछा है उन्होंने अमाउंट स्पेंडिंग पूछा था पैसे में लिखो या रुपीस में लिखो फाइनली उतना फर्क नहीं पड़ता है और इधर खाली इसका रेफरेंस के लिए मैंने x लिखा और यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए y लिखा 2 क्रॉस 1 थोड़ा ओके तो कितना आएगा टोटल अमाउंट स्पेंड therefore total cities x and y so total amount spent in city x is equal to कितने पैसे हैं 3,40,000 पैसे उसको कन्वर्ट करना है रुपीस में जो डिवाइड बाय 100 कर दो तो रुपीस डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3,400 दोनों आंसर सही है और टोटल अमाउंट स्पेंड इन सिटी वाई कितना आएगा 7,20,000 पैसे ओके अब 7,20,000 पैसे है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो तो कितना आएगा ₹7,200 लेट मी सी राइट इट डाउन यस 3,400 and 7,200 सी ठीक है टफ नहीं है इजी है पर a into b करना है b into a करना है वहां पे पूरा खेल है अब कोई स्टूडेंट इसको a into b कर दे या बिना लिखे मल्टीप्लाई कर दे और आंसर लेके आ जाए उसको 0 मिलेगा 2 मार्क का होगा या 3 मार्क का होगा मैट्रिक्स का यूज करें So you have to go with A into B or B into A. ठीक है? So I hope कि ये इलस्ट्रेशन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वो डाउट होना चाहिए. You मतलब like क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में डाउट होना चाहिए. Let me see. 20 ऐसा होगा तो मैं वापस कल लेकर आप पूरा रेफर कर लो. अगर आपको डाउट है तो हो सकता है मैं कल क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज कर दूं अगर लास्ट के 5 मिनट्स में मुझे आगे का सम नहीं करना है थोड़ा कुछ अभी अलग करते हैं ठीक है इतना हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2 के लिए आई होप कोई डाउट नहीं है मोस्टली आप ये तीनों लेक्चर्स लास्ट 3 क्लास के आप वीडियो लेक्चर देख लोगे यू विल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू व्हाट आई गिव इन द क्लास ठीक है तो देखो सारे कैलकुलेशंस मैं खुद ही कर रहा हूं आई एम गिविंग ऑल द कैलकुलेशंस मैं स्टैटिस्टिक्स लिख रहा हूं मैं पहले से नहीं लिख रहा हूं तो उसमें क्या होगा कि यू माइट फाइंड दिस टू बी लेंथी एंड ऑल कि कम हो रहा है पर अभी स्पीड में जाएंगे इफ आई सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस एंड गिव मेजॉरिटी ऑफ एज होमवर्क यू माइट नॉट लाइक इट कितने लोग करेंगे सो इट्स बेटर और एक दो सब मैंने वापस किए सपोज मुझे लगा कि मैंने अच्छी तरीके से किया था पर किसी को डाउट रह गया था कल को लास्ट के 5 मिनट्स में थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया तो आज वही समझ में आया वापस तो आपको क्लियर हो जाए ठीक है नाउ coming to the next topic which is really important और पूरी एक्सरसाइज 3.2 उसी पे है बहुत सिंपल है टफ नहीं है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ज्यादा कुछ हाई फाई भी नहीं है सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ओके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टफ नहीं है मैं सीधा लिखता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ओके मैं क्या लिखता हूं लेट A be a given matrix let A be a given matrix
then the matrix obtained by interchanging rows and columns of given matrix A is called transpose of A. It is denoted by A dash या AT. ट्रांसपोज ऑफ A के लिए सिंबल है वो डिपेंड करेगा. A dash बहुत पॉपुलर है और AT यूज होता है स्टेट बोर्ड में, पुराने बुक में यूज होता था. कभी कभी AT देते हैं. A dash क्या है? AT. मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा. लेट A is equal to 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर क्या है? A का 1 2 रोज 3 कॉलम. सो याद रखो A क्या है? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. लेट A be a given matrix. ये मैंने एग्जांपल दिया. फिर क्या है? Then the matrix obtained by interchanging rows and columns of the given matrix A is called transpose of A. तो ट्रांसपोज ऑफ A कब मिलेगा? जब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम बना देंगे. सारे रोज को कॉलम में बना देंगे. मतलब फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा. रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे. तो उस लॉजिक से A dash is equal to AT कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूं 1 2 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे 4 5 6. ये आ गया, खत्म हो गया. ये हो गया ट्रांसपोज. क्या लिखा है? The matrix obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix. A दिया है 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकंड रो और ये कॉलम्स हैं. सो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है. तो A dash कैसे मिलेगा? ट्रांसपोज है. AT कैसे मिलेगा? सारे रोज को कॉलम में लिख देगा. तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया. तो ये मेरा A dash का ट्रांसपोज है. अब इसका ऑर्डर देखो क्या है. A dash AT is equal to इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 क्रॉस 2. कुछ समझ में आया? 2 क्रॉस 3 क्या हो गया? 3 क्रॉस 2. मतलब ये जो होता है 2 क्रॉस 3 उसका फ्लिप हो जाएगा. वो थियरी में है. ठीक है. तो A is 2 क्रॉस 3. सो A dash का AT कितना है? 3 क्रॉस 2. मैं इधर उसका एक नोट लिख रहा हूं. सो हियर A is, ये समझ में आया बराबर? सो हियर A is 2 क्रॉस 3. Therefore A dash, therefore A is 2 cross 3. Therefore A dash और AT is 3 cross 2. उल्टा हो गया ऑर्डर. सो M cross N cross M हो जाएगा. A dash और A dash T वो मैं लिखने वाला हूँ थियरी. ओके. और उसमें खासियत क्या है कि थोड़ी बुद्धि लगी कि मैं 2 एलिमेंट्स दे रहा हूँ. 2 for 2 belongs to A. For 2 in A. और 2 क्या है? 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में. 2 किस में है? 2 किस में है? फर्स्ट रो 2 किस में है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. तो उसका मतलब for 2 in A 2 क्या है? A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है. मतलब वो A1 2 हो गया. पर वही 2 जब A dash और A dash T में जाता है तो 2 क्या हो जाता है? ये रहा. वो कौन सा रो में है? 1 2 सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में. तो वो 2 जो A1 2 है A ट्रांसफॉर्म में किसमें कन्वर्ट होगा? तो कहने का मतलब क्या? अगर वो A1 2 है 2 A1 2 है A में तो A dash या AT में वही 2 A21 हो जाएगा. मतलब AIJ AJI हो जाएगा. और एग्जांपल लेते हैं 3 का या 4 का. अगर मैं 4 का कंसीडर करता हूं 1 2 1 आएगा 5 6 1 2 क्रॉस. ओके. वो मैं 6 की बात करता हूं. 6 for 6 in A. देखो मैं जैसे for 6 in A 6 क्या है? कौन सा रो में? 1 2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में. मतलब वो क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम. मतलब वो A23 पर वही 6 A dash T में क्या आता है वो जरा सोचो. या वो मैं लिखने वाला हूं. तो वो क्या हो जाएगा? तो for 6 in A dash और A dash T वो 6 क्या हो जाएगा? वो 6
6 किधर है, 6 कौन सी, मैं 6 की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो वो कितना हो गया 8 3 2। तो देखो यहां पे 3 2, यहां पे 2 3, इंटरचेंज हो रहा है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट ए में a 2 3 है भाई a 3 2 हो गया, जो एलिमेंट a 1 2 है वो a 2 1 हो गया, इसके अंदर उसके ट्रांसपोज के अंदर। कहने का मतलब क्या, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सो फॉर लेट a इज इक्वल टू aij ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n, तो a डैश कैसे मिलेगा, a डैश या a डैश t कैसे मिलेगा। तुम जरा देखो मैंने क्या किया था, इसके पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें a was 2 क्रॉस है, सो a डैश और a t कितना है 3 क्रॉस 2, तो ऑब्वियसली a अगर n क्रॉस n है, a अगर n क्रॉस n है तो a डैश का ऑर्डर क्या होना चाहिए n क्रॉस n, ठीक है। तो a डैश और a डैश t, a डैश का a t में क्या कैसे लूंगा a j I ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n। ओके, n क्रॉस n और n क्रॉस n क्यों मैंने चेंज किया, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जांपल में a का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस है, तो a डैश t और a t का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, so m क्रॉस n becomes n क्रॉस n। और दूसरा ये 2 जो a12 है a में वो a डैश और a t में a21 हो जाता है, तो ये ij इंटरचेंज हो जाता है, तो उसका मतलब a डैश और a डैश t, a डैश और a t क्या है a j I ऑफ द ऑर्डर। ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। Are you clear? So let me give you another example. Suppose नहीं समझ में आया, एक दो, अगर मैं कंसीडर करता हूं a is equal to 2 4 3, ये मैंने लिखा था a is 2 4 3, तो ये कितने रोज हैं इसमें, a में कितने रोज 1 2 3, so 3 रोज और कितने कॉलम हैं 1, ठीक है। तो अब मैं इसका ऑर्डर लिखता हूं, ये a क्या है 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, अब मैं a डैश t लिखता हूं या a ट्रांसपोज लिखता हूं, तो a डैश मतलब a ट्रांसपोज, a t मतलब a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कैसे मिलता है, सारे रोज कॉलम में लिख देंगे या सारे कॉलम्स रो में लिख देंगे। तो ये 2 4 3 है, ये 2 4 3 है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में लिख दूंगा, तो ये a डैश t ये क्या हो जाएगा 2 4 3, तो a ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें मैं फर्स्ट कॉलम को रो बना दिया, सो a is 2 4 3, तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश क्या हो जाएगा 2 रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कितना रोज आएंगे 1 रो और कितने कॉलम्स 1 क्रॉस, ठीक है। सो हियर a is 3 क्रॉस 1 कॉमा a डैश t कितना है, एंड देयरफॉर a डैश और a t is 1 क्रॉस 3, so 3 क्रॉस 1, a is 3 क्रॉस 1, तो a डैश और a t क्या हो गया 1 क्रॉस 3, तो वही तो मैंने बोला a का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो a डैश और a t का ऑर्डर n क्रॉस n हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यहां पे 3 क्रॉस 1 है तो ये हो गया 1 क्रॉस 3, सिंपल, समझ में आ गया, यस। और अब वो aij, वन और टू स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे सर आपने aij को aj कैसे लिखा, वो समझ में नहीं आ रहा। किसी भी एक एलिमेंट को कंसीडर कर लो, 2 को और 3 को कंसीडर करेंगे, और 2a वो 2 क्या है, 2 कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, लेट मी टेक 3 फॉर 3 इन a, वो 3 क्या है 3 किसमें है, 3 किसमें 1 2 3, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो a 3 1 हो गया। अब वही 3 की अगर मैं बात करूं फॉर 3 इन a डैश और a d, वो 3 क्या है 3, यहां पे 3 रहा 3, तो कौन से रो में है फर्स्ट रो 2 3, थर्ड कॉलम में, तो वो क्या है a1, तो क्या हो गया ध्यान से अगर देखो तो 3 1 1 3 हो गया, तो वही तो मैं लिखा था aij aj, समझे, परफेक्ट। अब कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग ओवर हियर, कि आपको थोड़ा समझ में आए। और अगर 4 के बारे में क्या है, 4 के बारे में क्या है 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a 2 1 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, बहुत ही छोटा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर 4 इन a, 4 is 4, फर्स्ट रो 1 2 2 रोज 1 कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और वही 4 इन ए डैश और 80, सॉरी यहां पे थोड़े छोटे हैंडराइटिंग निकालने पड़ रहे हैं, 4 क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये 1 तो देखो वही 4 क्या हो गया 1 2 और इसमें क्या था 2 1। मेरे ख्याल से अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है। m क्रॉस n, a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, तो a डैश और at का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो मतलब अगर a m क्रॉस n है तो a डैश n क्रॉस n होगा। और कोई भी एलिमेंट ai j a j i कैसे हो जाएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं और पिछले में भी 2 एग्जांपल दिए हैं। आई होप आई एम क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइनली इसको अगर सम अप कर लेना है एक बार तो कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हमको सम अप करना है तो कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं सम अप कर देता हूं और यही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई वही चीज मैं वापस एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। 2 एग्जांपल्स आई गेव बिकॉज सपोज पहले में किसी को समझ में ना आया, सो आई गेव 2 एग्जांपल, तो हर एक में मैंने 2 एग्जांपल दिए, हर एक में 2 एलिमेंट का समझाया ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा अलग है, उतना टफ नहीं है, पर पहली बार कोई भी चीज टफ लगती है। जैसे मैं आज ये लेक्चर ले रहा हूं तो आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेरी थोड़ा मैं भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ट्रांसपोज पहली बार कर रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए इस बार लिखता हूं aij of the order m cross n, then matrix obtained by interchanging rows and columns, of given matrix A of, okay, let me try with the blue pen, of given matrix A. I don't think we will be able to say it, sorry, blue pen थोड़ा डिफेक्शन होगा, of given matrix A is called transpose of A, और ट्रांसपोज ऑफ A कैसे डिनोट कर देते हैं, A डैश या AT। तो ट्रांसपोज ऑफ A पहले डेफिनेशन में लिख चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ A इज A डैश और AT भी लिखते हैं, A ट्रांसपोज या A डैश। और दूसरा, सो लेट A इज इक्वल टू aij of the order m cross n, तो A डैश या AT क्या हो जाएगा, aji of the order m cross n। ये डायरेक्ट लिखता तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया और फिर आपको समझाया। आई होप आई एम क्लियर, तो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पूरा डेफिनेशन। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रूफ नहीं चाहिए, उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है तो याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दिस प्रॉपर्टीज में आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो सीधा मैं लिख रहा हूं लेट A and B, let A and B be two matrices of suitable order and K is a real number। A और B कोई भी दो matrices हैं और K रियल नंबर है और उनका ऑर्डर सुटेबल ऑर्डर, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो डिफाइन होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे A का ऑर्डर क्या होना चाहिए, B का ऑर्डर क्या होना चाहिए।
डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, वो सब डिफाइंड है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, दैट इज कभी-कभी t में भी लिख सकते हैं। तो a प्लस b ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b इज, पर प्लस आना चाहिए, मेरा मिस्टेक, a प्लस b ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b इज at प्लस b। ये पहला हो गया। माइनस में भी वही आएगा, a माइनस b का ट्रांसपोज ऑफ a माइनस b इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, दैट इज a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ad माइनस b। ये दो प्रॉपर्टीज हो गए। ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ a माइनस b इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है कि a डैश is k times a transpose, transpose of ka, transpose of ka is k into a transpose, that is ka, transpose of ka is k times a transpose। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। टी में भी याद रखो, डैश में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा टी में तो टी में भी याद होना चाहिए, डैश में पूछा तो डैश में भी होना चाहिए, क्योंकि बोथ नोटेशंस आर गिवन। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे डैश में क्या करना है, या टी में लिखेंगे ऐसे, दोनों चीजें लिखो, याद रखो, इजी रहेगा। और फोर्थ है फोर्थ इज ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज इज a, दैट इज AT ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज इज a itself, ऑब्वियसली उन दो बार ट्रांसपोज होके वही मैट्रिक्स मिलेगा। और लास्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ AB इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोज ऑफ AB इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पांचों पांच आ रहे हैं। कैसे, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, transpose of k is k into A transpose, transpose of A transpose is A itself and transpose of AB is B transpose into A transpose। है वो clear? ऐसा करते हैं, वापस लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। वापस मैं पांचों के पांचों लिख देता हूं, तो आप भी वैसे दो बार you will go through। See, कोई भी चीज दो बार रिपीट करने से it will go into your head and mind very clearly, ठीक है ना? इसलिए कभी-कभी ये चीज मैं दो बार रिपीट कर रहा हूं। जनरली टाइम थोड़ा कम होता है वीडियो लेक्चर में, तो थोड़े कट डाउन करने पड़ते हैं पॉइंट्स, बट यू नो आई ट्राई टू गिव यू अगेन एंड अगेन। थोड़ा कभी-कभी आपको स्लो लगेगा, प्लीज बेयर इट इज इन योर बेनिफिट ओनली। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने दो क्लास लिए, तो वो दो क्लास क्यों ली, ताकि ज्यादा एग्जांपल्स कवर हो और किसी को पहले में ना समझ में आया हो तो दूसरे में समझ में आ जाए, दैट्स ऑल, ठीक है ना? सेम वे ये कल का और आज का लेक्चर वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स में था 1920 जैसे और एग्जांपल 19 लिया, सेम लॉजिक था। तो वैसे इधर पे लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? हाँ, तो उसमें लिखा था लेट A, B two matrices of suitable order and k is any real number, ठीक है? पहला प्रॉपर्टी क्या था? ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या था? ट्रांसपोज, देखो ओके मैं इधर लिखता हूं, जैसे स्टार्ट करता हूं, जिस ऑर्डर में लिखा था वैसे ही आना है, तो वैसे ही आना है। फर्स्ट सम A plus B the whole transpose is A transpose plus B transpose, इंडिविजुअल ट्रांसपोज दे सकते हैं अपनी हमारी भाषा में, सिंपल। सो A plus B transpose is A transpose plus B transpose, ये पहला प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी माइनस नहीं है, टेक्स्ट में नहीं है, बट लिख सकते हैं डायरेक्टली A minus B डैश ट्रांसपोज ऑफ A minus B is A transpose minus B transpose। सब्ट्रैक्शन में भी हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज दे सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो A minus B का ट्रांसपोज, द ट्रांसपोज ऑफ A minus B is A transpose minus B transpose। तीसरा क्या था? KA dash transpose of K into A is
k times a dash, that is ka का ट्रांसपोज आएगा k into a ट्रांसपोज। ये थर्ड हो गया। चौथा क्या था, सेट्स में करते थे, याद है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ विद द सेट इटसेल्फ, सेम ही आएगा। a दो बार उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा। और अगर ऐसा होगा, सम्स हैं एक्सरसाइज में जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ है, मतलब उन्होंने वेरीफाई करने को बोला, और ऐसा होगा तो आई विल गिव वन एग्जांपल। ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज इज a, दैट इज a ट्रांसपोज द होल डैश इज a। और फिफ्थ में क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ab का ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज, दैट इज ab का ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। वेरी इंपॉर्टेंट दिस फाइव प्रॉपर्टीज, उसमें ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज होगा हर एक का यूज होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? इसको छोटे छोटे हैंडराइटिंग में दूंगा, 5 मार्क्स में। ठीक है, दैट्स व्हाई बड़ा बोर्ड चाहिए, थोड़े बड़े हैंडराइटिंग चाहिए। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होगा तो मैं क्या करता हूं, खाली उसके डेफिनेशंस दे देता हूं। या मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं वो चीज वापस कवर करूंगा, सो डोंट टेक मच टेंशन। ठीक है, तो मैं खाली उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं और 2 मिनट में, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम हो गया होगा, तो मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में खत्म कर देता हूं। बराबर, आगे नहीं जाना, क्योंकि फिर आई एम लुकिंग एट द वॉच, वॉच में भी 3-4 मिनट बाकी है, तो उसमें मैं वाइंड अप करूंगा, आगे मुझे नहीं जाना। बराबर, तो मैं खाली फटाफट 2 डेफिनेशन लिख देता हूं और 1-2 मिनट में खत्म कर देता हूं। अब खाली और इसे कैरेक्टरिस्टिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, खाली मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ओके, लेट A is equal to aij of the order n cross n. We are given matrix, we are given square matrix, we are given square matrix। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि if a dash is equal to a, और उसको कैसे लिखते हैं, at is equal to a, then a को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन। बस आगे इसके बारे में कुछ भी एग्जांपल है, मतलब खाली याद रखना है। और दूसरा है लास्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें क्या आएगा, लेट A is equal to aij of the order n cross n be a square matrix। तो अगर if a dash is equal to minus a और at is equal to minus a, then A is skew symmetric matrix। बस ये डेफिनेशन है, आज के लिए इतना ही है, मुझे आगे नहीं जाना। मैंने बोला 3-4 मिनट और मैं 2 मिनट में वाइंड अप करता हूं। तो सिंपल याद रखना है, a स्क्वायर मैट्रिक्स है, a dash इक्वल टू a और at is equal to a, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्वायर मैट्रिक्स है और a dash is equal to minus a या at is equal to minus a, then a is स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं यहां से कल कंटिन्यू करूंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। ठीक है, गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज of transpose of matrix and its definition। Okay, that's all for today and thank you and study well।